Welcome to Manual Education. Welcome to this video now. In this video we will discuss about logical reasoning part of CLAT 2024 पेपर. रिसेंट पेपर जो हुआ है उसके जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैसेज हियर. Students have been abuzz over how artificial intelligence tool can do their homework. Programmers over how these can increase their productivity or take away their jobs. मतलब स्टूडेंट्स लोग जो है वो परेशान है या फिर सोच रहे हैं कि उनका होमवर्क कैसे होगा इन एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, और जो प्रोग्रामर्स है वो सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी या फिर हमारे जॉब चले जाएंगे. एज सच, as much as the digitization has transformed the country in the recent years, there is a widespread feeling that at some point around the horizon, AI shall reaching everything in even more fundamental, fantastic and frightening ways. This is why deciding how the coming changes should be regulated is very important. TRAI has made a strong case for an independent statutory authority to ensure the responsible development and use of AI in the country. A global agency along the similar lines shall likely to be pitched at G20 Leaders Summit. And interestingly, even American MNC Microsoft has floated a blueprint for AI governance in India. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो AI है उसके ऊपर जो लॉज निकलने वाले हैं या फिर जो लॉज निकालने हैं या फिर उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालने हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च किया जाए और अच्छी तरीके से उनको निकाला जाए. दैट इज ओनली दे आर सेइंग कि एआई जो है वो कंट्रोल ना करने लग जाए. ये एक जो डर है वो इसको दिखा रहा है. नाउ द ग्रेट साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ इट्स डाटा पॉइंट्स make India of great interest to all developers of the AI technology. Now, but India is only at their receiving end, now nowhere close to the US, China's advances. Although lately it is becoming obvious how much state censorship is encumbering China's large language modeling, and the country is still very much in the game with the PhDs in the field related to AI, investment in AI chip hardware design and domestic generative models like a VuDAO. Now यहाँ पे क्या बोला है, द कंट्री इज स्टिल वेरी मच इन द गेम विद व्हाट PhDs इन द फील्ड रिलेटेड टू AI. मतलब जो है कंपटीशन जो है वो किस में है, जो मैन पावर है हु आर द PhDs इन द AI एंड देन इन्वेस्टमेंट्स इन द AI चिप हार्डवेयर डिजाइन, इन्वेस्टमेंट करने में कंपटीशन में है. और किस में है तो डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल्स लाइक अ VuDAO. देन the scientific accomplishment of India's Chandrayaan mission have seen it being wooed for various international space collaboration. This promises spin-off technological benefits across the Indian industry and is also geostrategically useful. Likewise, it is only with sufficient AI prowess that India shall really get to play at a high table of global rule making for AI. Next. Knowing how much Indians future shall be shaped by generative AI needs matching efforts to create indigenous models. In this and at this stage, a proactive government role is a key rather than just waiting on some large corporation to do needful. Now यहाँ पे बोला है कि AI में अगर रूल मेकिंग कंट्री बनना है तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको प्रोएक्टिवनेस दिखाना होगा, ना कि बैक स्टेज बैठ के वेट करना होगा. Missing these bursts will after all be even more costly than missing the cheap research one. Plus, Government of India alone can push academia industry collaborations with the necessary weight and urgency. This does not let other institutions off the hook. A US judge has rejected the copyright for AI generated artwork. US जज जो है उन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट किया है कॉपीराइट AI जनरेटेड आर्टवर्क के लिए. देन इंडियन कोर्ट्स शुड स्टार्ट एंगेजिंग विद द ब्रॉडर इश्यूज ऑफ नॉन ह्यूमन एजेंसीज रादर देन वेट फॉर अ precedents to be set elsewhere. Indian schools need to think beyond the ban chat GPT mindset. Let us lead instead of only being led. First question: if the information in the passage above is correct, which of the following must necessarily be true? Now यहाँ पर information जो passage में दी है about the AI, then which would be correct? Option A says AI regulation is responsible of legislature alone. No, this is wrong. Only बोला, देखो alone बोलना मतलब wrong हो गया, ये specific नहीं होना चाहिए. AI regulation is a responsibility of courts and can be addressed through standalone statutory rules. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि AI रेगुलेशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स एंड कैन बी एड्रेस थ्रू स्टैंड अलोन स्टैट्यूटरी रूल्स. मतलब ये बोलना है कि ये कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी कोई भी स्टैंड अलोन स्टैट्यूटरी रूल्स इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
Now, option C says AI regulations is a collaborative effort involving all institutions of the state. Yes, this is correct. General answer. So option C should be your right answer. AI regulation is a domain of private industry. Specific answers आपके answers नहीं होंगे. So option D would be your wrong answer. Then, based on author's argument, which of the following would result in weakening rather than strengthening India's position at the forefront of generative AI? मतलब यहाँ पे ये बोला है कि जो ऑथर ने जो आर्ग्यूमेंट दी, जो पैसेज में जो डिस्क्रिप्शन दिया, ऑन दैट बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन वीकनिंग, मतलब ये इंडिया की जो पोजीशन है एट द फोरफ्रंट ऑफ द जनरेटिव एआई, तो यहां पर ये इंडिया की पोजीशन को वीक करने वाला कौन सा स्टेटमेंट है वो हमें बताना है. दैट शुड बी अपोजिट टू द गिवन आर्ग्यूमेंट. सो ऑप्शन ए सेज इन्वेस्टिंग इन इंडिजिनियस एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन एंड डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल्स. यहां पे ये बोला है कि अगर हम लोग इंडिजिनियस एआई चिप हार्डवेयर डिजाइन एंड डोमेस्टिक जनरेटिव मॉडल्स में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? नहीं, इससे वीक नहीं होगा, इससे उल्टा अच्छा होगा, बिकॉज इट इज डोमेस्टिक बेसिक. देन एक्सप्लोरिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स विद अदर साइंटिफिक एडवांसमेंट्स लाइक द चंद्रयान मिशन. मतलब ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लोरिंग स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स. स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बेनिफिट का मतलब ये होता है कि हमने जो आज कुछ नया किया है उस वजह से जो दूसरी कंट्रीज जो हमारे पास डिमांड कर रही है ना टेक्नोलॉजीज की, उसे कहते हैं स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स. तो ये जो स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स है उसको एक्सप्लोर करें, मतलब उसका फायदा उठाए. एंड दैट इज द ट्रुथ. ये तो अच्छी बात है ना. यही तो फोरफ्रंट जो जनरेटिव एआई में हम लोग जो फोरफ्रंट पोजीशन पे है उससे हम लोग को बेनिफिट दिलाएगी. तो यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी पोजीशन, वीकन नहीं होगी. Option C says introducing a generative models like a ViewDAO which have demonstrated a success in other jurisdiction. देखो, किसी को कॉपी करने से कभी भी कोई चीज सक्सेसफुल नहीं होती. सो बेसिकली अगर ViewDAO जैसे मॉडल्स को हम लोग अगर कॉपी करेंगे, दैट मीन्स अगर वो दूसरे कंट्रीज में चला है इसीलिए हमारे कंट्री में भी चलेगा, एंड देन वी डू दैट, सो ये तो कंप्लीटली वीकन करेगा इंडिया की पोजीशन को. सिंपली ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर. ऑप्शन डी सेज लोकली डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी सच एज इंडिजिनियस एआई मॉडल्स. गुड थिंग, डोमेस्टिक लेवल पे करोगे देन एक्सपोर्ट करोगे, सो इट वुड बी इन बेनिफिट फॉर यू. सिंपल. तो ऑप्शन डी वुड बी योर इन फेवर. सो वीकनिंग क्या होगा? ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट, द ऑथर स्टेट्स दैट मिसिंग दिस बस विल आफ्टर ऑल be even more costly than missing a cheap research one. Now, for this statement to be true, with which of the following statements about a cheap research must be the author most likely agree? मतलब ये जो स्टेटमेंट बोला है इसको ट्रू होने के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, मतलब अगर ये इस टाइम जो बस है ना, बस इन द सेंस व्हाट, ये जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज बस इज दैट इज एज कॉल्ड इज, मतलब ये बस को जो कहा गया है ना वो दैट इज समथिंग लाइक अपॉर्चुनिटी. इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया तो ये चीप अपॉर्चुनिटी है, ये चीप अपॉर्चुनिटी है. तो इस चीप अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मतलब इसने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना, इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करेंगे इसके बाद. नाउ अगर ये स्टेटमेंट को ट्रू होना है, इस स्टेटमेंट को ट्रू होना है, तो इन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है चीप रिसर्च के बारे में वो ऑथर अग्री करेगा. मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर ऑथर अग्री कर जाएगा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू. सिंपल. नाउ ऑप्शन ए सेज इंडिया लीड अ चीप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटायर्स. यहाँ पे ये बोला है इंडिया जो है वो लीड करती है चीप रिसर्च फ्रॉम इट फ्रंटायर्स. ये नहीं करेगी, बिकॉज अगर इंडिया लीड करती तो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी की बात नहीं होती. इंडिया वॉज अ राइट टू लीव रेगुलेशंस ऑफ चीप इंडस्ट्री एंड रिसर्च टू एमएनसीज. मतलब यहाँ पे बोला है इंडिया वॉज अ राइट टू लीव, मतलब इंडिया जो है वो सही थी लिविंग द रेगुलेशन ऑफ चीप इंडस्ट्री एंड रिसर्च एमएनसी. इसके बारे में ये सारी बातें तो पैसेज में भी नहीं हुई है. और बेसिकली अगर वो रेगुलेशन ऑफ अ चीप इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च टू एमएनसीज इस चीप थिंग में से, मतलब इन चीजों में से अगर वो बाहर निकलती है, दैट इज ऑल्सो नॉट इन द सेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी और समवेयर इंडिया विल बेयर कॉस्ट समवेयर, तो वो तो नहीं होगा यहाँ पर. ऑप्शन सी सेज इंडिया शुड हैव प्रोएक्टिवली प्लेड अ रोल इन रिस्पॉन्डिंग टू न्यू रिसर्च इन चीप टेक्नोलॉजी. यस, दिस वुड बी अ करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज गिवन इन द पैसेज ऑल्सो. इफ यू कैन सी हियर, देखो यहाँ पे बोला है proactive role is a key rather than just waiting on some large and corporation to do the needful. उसके आगे देखो missing this bus. अब ये this bus जो लिखा है ना वो स्टेटमेंट के लिए लिखा है, और यहाँ पर भी proactiveness की बात की गई है, and also here is also proactiveness की बात की गई है. So answer C should be your right answer. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ, इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे कि ऑथर अग्री कर जाएगा, दैट मीन्स इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पैसेज से ट्रू होगा। नाउ ऑप्शन ए सेज द बेस्ट वे टू डील विथ द एडवांसमेंट ऑफ एआई इज टू लीव इट्स रेगुलेशंस टू मार्केट फोर्सेस, मतलब ये बोलता है कि बेस्ट वे टू डील विद द एडवांसमेंट ऑफ एआई इज व्हाट, कि उसको मार्केट फोर्सेस के साथ छोड़ दिया जाए। बेसिकली मार्केट फोर्स इज समथिंग लाइक डिमांड एंड सप्लाई के जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स, ये कहना है इन शॉर्ट। नाउ ऑप्शन बी सेज government driven control of AI is insufficient and shall promote the red tapism, ये red tapism and government intervention इस सब की तो बात ही नहीं हुई है। ऑप्शन सी सेज प्राइवेट कंपनीज with their large capital and infrastructural design the most efficient AI governance model, मतलब प्राइवेट कंपनी जो होती है वो उनके लार्ज कैपिटल यूज करके और इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन यूज करके मोस्ट इफिशिएंट एआई गवर्नेंस मॉडल बनाती है, ऐसा बोला है। बट एआई गवर्नेंस मॉडल बनाना और ये बेसिकली लार्ज कैपिटल का क्या रिलेशन होता है? गवर्नेंस मॉडल बनाना और लार्ज कैपिटल का कोई रिलेशन नहीं होता, इवन दो दैट इज अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो, या फिर गवर्नमेंट बॉडी हो तो भी। तो सिंपल है, गवर्नेंस बनाना है तो दैट शुड बी अ सेंसिबल बॉडी और अथॉरिटी विच हैविंग अ पावर, तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव ऑफ एआई रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट लीड टू एफिशिएंट आउटकम्स, ऑप्शन डी वुड बी योर राइट आंसर, ए वुड बी गेट कैंसल्ड। नेक्स्ट वन, which of the following if true would most strengthen the main argument of the passage, मतलब इसमें से अगर ऐसा कौन सा पॉइंट है इफ ट्रू, अगर वो सच है तो वो आर्ग्यूमेंट में जो पैसेज में जो आर्ग्यूमेंट दिया है, मेन आर्ग्यूमेंट दिया दैट इज अबाउट एआई गवर्नेंस, वो स्ट्रेंथन करेगा। नाउ ऑप्शन ए सेज गवर्नमेंट्स दैट लीड्स द इनिशिएटिव ऑन रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एडवांसमेंट ऑफ द एआई टूल्स बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम देम, मतलब ये बोला है कि गवर्नमेंट दैट लीड्स द इनिशिएटिव ऑन व्हाट रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एडवांसमेंट ऑफ एआई टूल्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम देम, मतलब जो गवर्नमेंट खुद के पास जो एआई बन रहे, खुद के कंट्री में जो एआई बन रहे उनसे ही जो बेनिफिट उठाने में इनिशिएटिव ले रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट विल गेट लाइक उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, ये कहना है। ऑप्शन बी सेज गवर्नमेंट दैट डोंट एंगेज विद जनरेटिव एआई, डोंट एंगेज नेगेटिव बोला है, देखो यहां पर आर्ग्यूमेंट में क्या बोला है, स्ट्रेंथन, ये डोंट एंगेज बोला है और हमारा पैसेज जो है वो एआई की सपोर्ट में है, दैट इज अबाउट गवर्नेंस, तो ऑप्शन बी विल बी गेट कैंसल्ड। ऑप्शन सी सेज गवर्नमेंट्स दैट एक्टिवली इंसेंटिवाइज द एमएनसीज टू पार्टिसिपेट, MNCs, only MNCs, it is talking about only MNCs, it is not talking about overall part of the AI generation factor. So AI governance make the most out of the advancement in the field, ये गलत होगा because it is only talking about MNCs, so this is not the right answer. Then government that explores model of the public private partnership strike the right balance in the regulating जनरेटिव AI, यहाँ पे प्राइवेट एंड पार्टनरशिप के बारे में ये सब बातें नहीं हुई है, सो ऑप्शन डी वुड गेट कैंसल एंड ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर। Based only on the author statement that Indian courts should start engaging with the broader issue of the non-human agency rather than wait for a precedence to be set elsewhere, मतलब AI जो कोर्ट है, इंडियन कोर्ट जो है वो दूसरे का देख के काम ना करे, लाइक जो यूएस में जो AI कॉपीराइट जो था वो बैन किया गया था, मतलब नहीं अलाउड किया गया, जैसे कि मैसेज में बताया, तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया की कोर्ट को दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, उनको नहीं देखना चाहिए, जो चैट जीपीटी बैन वाला जो माइंडसेट है उनको छोड़ के कुछ अलग करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द ऑथर बी मोस्टली लाइक टू अग्री विद, इस स्टेटमेंट से रिगार्डिंग अगर ऑथर अगर कुछ सोचे तो वो क्या अग्री कर जाएगा ना। ऑप्शन बी सेज सी, ये सारे ना थॉट्स है, ऐसा समझो इनमें से कौन से थॉट्स से ऑथर है एग्री करेगा इन रिगार्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब देखो, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इन पॉजिटिविटी स्टेटमेंट इन द सेंस ऑफ इन कोर्ट, लाइक इंडियन कोर्ट्स के लिए। नाउ ऑप्शन ए सेज कोर्ट शुड टेक द इनिशिएटिव बाय बीइंग इनोवेटिव एंड लेइंग डाउन द रूल्स वेयर नो प्रेसिडेंट्स एग्जिस्ट, मतलब यहां पर बोला गया है कि इंडियन गवर्नमेंट वहां पर इनिशिएटिव ले जहां पर पहले से कोई प्रेसिडेंट्स है ही नहीं। प्रेसिडेंट्स का मतलब होता है पहले से कोई ऑर्डर्स, कोई डिक्रीज, कोई डिसीजंस निकले नहीं हो, कुछ नई चीजें नहीं निकली हो, कुछ ट्रेडिशन नहीं बना हो, वहां पर जाके इंडियन कोर्ट जो है वो ज्यादा इनिशिएटिव ले और खुद को आगे लेके आए। कोर्ट शुड वेट फॉर अ प्रेसिडेंट, ये गलत है, कोर्ट शुड वेट फॉर अ प्रेसिडेंट ये बोलना गलत होगा, बिकॉज इन द पैसेज इट इज गिवन एज दैट कि वहां पर वेट नहीं करना चाहिए। इन मीन टाइम रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग विद द चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द जनरेटिव एआई, दिस इज अ रॉन्ग, पैसेज में बोला ही नहीं है। कोर्ट शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन अ प्रेसिडेंट्स एंड डिसाइड्स केसेस ऑन बेसिस ऑफ जुडिशियल विजडम, जुडिशियल विजडम के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, ऑप्शन सी वुड गेट कैंसल। देन प्रेसिडेंट्स आर बेस्ट पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग, दिस इज अबाउट द आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग एंड प्रेसिडेंट्स, इनके बारे में जो डिस्कशन और कंपैरिजन हो रहा है, एंड दिस इज नॉट द मेन
crux of the sentence also and the passage also. So option D will get cancelled. Option A would be your right answer. Now next question. In a world where aspiration for the upward mobility are fervent, the opportunities for achieving such a dreams remain limited. When one generation falls short, the mantle of ambition passes to the next, embedding within इट अ हैवी बर्डन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब जब एक जनरेशन कुछ अचीव करने में फेल हो जाती है तो वही जो बर्डन है वो नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट हो जाता है एंड दैट बिकम्स मोर लाइक ये बर्डन बन जाता है. फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन आ जाता है कि पहले वाले जनरेशन ने ये नहीं किया तो अभी हमें करना है. फेलिंग टू मीट दीज एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू प्रोफाउंड सॉरो. प्रोफाउंड सॉरो का मतलब बहुत ज़्यादा दुख. एंड इन डायरेक्ट केसेज इवन टू सुसाइड. इसकी वजह से क्या होता है? सुसाइड होता है. इट्स in this landscape that coaching institutes assume a significant role, cultivating an atmosphere of the uncertainty among the student and parents. A stark discrepancy emerges between the preparation for the board examinations and competitive taste, applying the inequalities that plague the education system. मतलब यहाँ पे ये बोला है stark discrepancy emerges between the preparation of the board examination and competitive taste. इसके in between जो problems create होते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल होता है किसका? तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का. अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के अंदर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है उसको अगर कवर करने में, उसको अगर ठीक करने में, या फिर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन के बीच में जो अनसर्टेनिटी है उसको कम करने में अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स लोगों के लिए कि वो बर्डन वो सक्सेसफुली कवर कर पाए, ऑब्स्ट्रैक्ट कर पाए. नेक्स्ट, द कोचिंग इंडस्ट्रीज मैसिव मार्केटिंग कैंपेन्स फर्दर exacerbate the situation, with some strategies veering into the ethical gray areas. The tests themselves, designed to be more challenging than standardized exams, set the stage of feelings of inadequacy and self doubt when not conquered. मतलब क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ द डेज में, यहाँ पे ये बताया गया कि स्टार्टिंग ऑफ द डेज में बड़े अच्छी तरीके से उनको मार्केटिंग कैंपेन्स यूज किए जाते हैं. मार्केटिंग के लिए उनको कुछ भी बताया जाता है, झूठे एक्सपेक्टेशंस दिए जाते हैं कि ये प्रोवाइड किया जाएगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा, देता तो कुछ नहीं, होता तो कुछ नहीं है. सो सिंपली इन दैट केस क्या होता है कि ये इनएडिक्वेसी जो होती है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती. सो दे टेक इट एज लाइक कि मुझ में कुछ कम है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ गलत कर रहा हूं. सो इन दैट सेंस ये जो है उनके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है. बट यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो वो एजुकेशन सिस्टम और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट. नाउ आवर एजुकेशनल सिस्टम इज अ टेलर्ड टू जज एन इंडिविजुअल्स मेरिट थ्रू एग्जामिनेशन. हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से बनी हुई है? टेलर्ड हुई है. मतलब क्या बनी हुई है? दैट विच पर्सन शुड जज विद दैट मार्क्स. मतलब उनके मार्क्स से वो जज होते हैं. एमिनेंट थिंकर माइकल जे सैंडल डब्स दिस सिस्टम द टायरनी ऑफ मेरिट. टायरनी ऑफ मेरिट मतलब मेरिट की फाइटिंग. A sentiment echoed by Supreme Court of India upholding the OBC reservation judgment. The court called for the deeper evaluation of idea of a merit, highlighting its nuanced nature. Merit as a concept remains shrouded in misunderstanding and often goes unexamined within a school curriculum. मतलब यहाँ पे मेरिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा अनएग्जामाइंड होते हैं स्कूल के करिकुलम में. नाउ मतलब स्कूल करिकुलम मतलब क्या? तो स्कूल के करिकुलम एक्टिविटी में जो पर्सन एक्सपर्ट होता है उसको तो इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, उसके मार्क्स को इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं. अडेप्टिंग टू द न्यू लिविंग अरेंजमेंट, सोर्सिंग नरिशिंग मील्स, बैटलिंग आइसोलेशन, ग्रैपलिंग विद द कम्यूट्स फ्रॉम बैकड्रॉप्स अगेंस्ट with education unfolds for marginalized communities, gender minorities, these hurdles are often amplified. Social media algorithms exacerbate mental health concerns, sowing loneliness and impeding attention spans and creativity. यहाँ पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. टेक्नोलॉजी emerges as a potential equalizer in these landscape. Now, online platforms now offer the preparation opportunities from the comforts of the one's home, and government curated the market-driven content could usher in a new era of accessibility. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर इसके अंदर इनिशिएटिव ले तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट्स की हेल्प बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा. Now, moving to the question, which of the following is correct regarding the inequalities mentioned by the author? Inequalities mention की गई है तो उसमें क्या correct है? देखो, there is a no difference between a preparation of the board and competitive examination. यहाँ पे बोला गया कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि competitive examination and board. Now, education system accommodates the inequality. Competitive examination leads to social inequality. ये wrong है, ये भी wrong है. So option B get cancelled, C get cancelled. Option D says there are the existing inequalities which are enlarged by competitive examination. Yes, this is right. Option D would be your right answer. Option A would get eliminated.
Now, which of the following statement reflects the use of online platforms for education as per the author? इसमें से ऐसा कौन सा statement जो reflect करता है that is use of online platforms for education as per the author? C. It provides the equal opportunity to all the students irrespective of the caste and creed. Caste and creed के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है ऑप्शन में कहीं पर भी. Then passage में then it encourages the students to prepare for the examination. It should be the only means to education. C. यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो पैसेज में बोला गया था उसके अंदर लिखा गया था कि इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन एज वी रेड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पैसेज. सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नाउ ऑफर द प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द कंफर्ट्स फ्रॉम वंस होम. दैट मीन्स व्हाट कि वो उनको प्रिपेयर करने के लिए encourage करता है. So option B would be your right answer. Option D, it cannot be accessed by the majority of people. This is wrong, and option A would get cancelled. Now next, which of the following is not the challenge for the quality education? इसमें से quality education के लिए कौन सा challenge नहीं है ये बोला हुआ है. Influence of the social media, then mental health of the students and parents. चैलेंज नहीं है. देखो, इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशल मीडिया इज द चैलेंज फॉर द क्वालिटी एजुकेशन. देन मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, यस दिस इज द चैलेंज फॉर द क्वालिटी एजुकेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज. सी ऑनलाइन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होना ना होना, दिस कुड नॉट बी अ चैलेंज फॉर द क्वालिटी एजुकेशन, राइट. सो दिस इज नॉट द थिंग विच इज रिलेटेड टू द ओनली एजुकेशन, राइट. तो ये ऑनलाइन रिसोर्सेज तो कौन से भी हो सकते हैं. बेसिकली इट इज अबाउट द एजुकेशन शुड बी. सो आंसर सी शुड बी योर राइट आंसर. लैक ऑफ द कॉम्पिटिटिव एटमोस्फियर्स अमंग द पीयर्स, नो दिस इज नॉट द चैलेंज, दिस इज द चैलेंज एक्चुअली. देन नेक्स्ट, एज पर द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली लीडिंग टू सुसाइड अमंग द स्टूडेंट. नॉट लाइकली लीडिंग टू सुसाइड अमंग द स्टूडेंट बोला हुआ है. स्टूडेंट की सुसाइड के लिए रीजन नहीं होगा. इन द सेंस इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट. इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये नॉट लाइकली टू लीडिंग बोला हुआ है. इनकरेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है. अब देखो, बर्डनिंग ऑफ एम्बिशंस बाय वन जनरेशन टू अनदर. बर्डनिंग ऑफ एम्बिशंस बाय वन जनरेशन टू another. Then creation of the hostile environment by coaching institute, this is wrong. Options D says living in the surrounding with the different background and culture. मतलब यहाँ पे बेसिकली ये बोला है कि living in the surrounding with the different background and culture, ये तो बात ही नहीं की गई थी. So option B और something like options A. तो यहाँ पे पैसेज में चेक करते हैं. सी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बताया गया है फेलिंग टू मीट दीज एक्सपेक्टेशंस कैन लीड टू प्रोफाउंड सॉरो एंड द डायरेक्ट केसेस इवन टू सुसाइड. मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन्होंने बोला कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है, देखो सी यहाँ पर ऑप्शन में क्या बोला है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. बेसिकली क्वेश्चन इज आस्किंग इज नॉट लाइकली लीडिंग टू द सुसाइड. अब ये जो है बर्डनिंग ऑफ एम्बिशंस बाय वन जनरेशन, ये तो लीडिंग टू द सुसाइड है, तो ये नहीं आएगा. ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर. सिंपल, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज एंड दिस इज रॉन्ग. सो सिंपल. नेक्स्ट, which of the following is not true regarding the education system as per the opinion of the author. opinion of the author के मतलब जो opinion author का opinion है उसके हिसाब से education system के बारे में ऐसा कौन सा यहाँ पे statement है जो wrong है, is not true, is a false one. Then it is a primarily based on a merit of the student. primarily based on the merit of the student, it is true, it is not a false. like हमें तो false one चाहिए ना. Then next, मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट द डिटर्मिनिंग फैक्टर. हाँ, दिस वुड बी अ ट्रू, बिकॉज पहला ही स्टेटमेंट हम लोगों ने अपोजिट बोल दिया ना, ये तो ट्रू वन हो गया, हमें तो चाहिए फॉल्स वन. दिस वुड बी द फॉल्स एंड दिस वुड बी योर राइट आंसर. एग्जामिनेशन प्लेज अ पाइवोटल रोल इन द एजुकेशन सिस्टम, दिस वुड बी राइट आंसर. ये तो ट्रू होगा ना, हमें तो फॉल्स वन चाहिए, नॉट ट्रू वाला चाहिए. एन इंडिविजुअल मेरिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एग्जामिनेशन, एंड इंडिविजुअल मेरिट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट एग्जामिनेशन, दिस वुड बी ऑल्सो ट्रू. सो हमें क्या चाहिए, फॉल्स वन चाहिए, तो बी वुड बी योर राइट आंसर. Next question, which of the following strengthens the arguments regarding the idea of the merit as per the above mentioned passage? Now, option A says true merit is a multifaceted and extended beyond the performance in a single competitive examination. मतलब यहाँ पे ये बोला है true merit क्या होते हैं, that is multifaceted, मतलब बहुत ज़्यादा उसको अलग अलग dimensions है, that is extends to beyond the performance in the single competitive examination. Yeah, that's only the passage is saying. Now, option B says pervasive inequalities can only be identified with the help of the single competitive examination. Wrong. सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जो इनइक्वालिटीज है उनको फाउंड किया जा सकता है, ऐसा इसका कहना है ऑप्शन का. तो ये तो रॉन्ग होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट द आइडिया ऑफ मेरिट. ऑप्शन सी सेज ट्रू मेरिट इज नॉट अ मल्टीफैसेटेड एंड डज नॉट एक्सटेंडेड. अगर ये राइट है गाइस तो ये रॉन्ग होना चाहिए ना, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन द स्कूल एजुकेशन इंश्योर्स द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया ऑफ मेरिट. रॉन्ग. Option D will be get eliminated. Option A would be your right answer. Third passage,
Words remain an enigma. Their presence within a human space is a unique mystery. They form the intricate tapestry that convinces us of our existence, blurring lines between fact and fiction. An engagement with the words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. A word, a symbolic entity formed from ethereal, exists neither as animate or inanimate, yet pulsates विद लाइफ. मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, एक जो वर्ड होता है इज अ सिंबॉलिक एंटिटी, एक सिंबॉलिक एंटिटी है, फॉर्म्ड फ्रॉम एथरियल, एग्जिस्ट नीदर एज एनिमेट और इनएनिमेट, येट पल्सेट्स विद द लाइफ. मतलब जो वर्ड्स होते हैं ना वो एनिमेट भी नहीं होते, इनएनिमेट भी नहीं होते, बट वो लाइफ को और दूसरे की बातों को मतलब दूसरे की नेचर्स को अफेक्ट जरूर करते हैं. इट कैन इमैनेट वार्मथ और कोल्डनेस, एब्जॉर्ब इमोशन, स्टैंड्स एज अ ड्राई एज अ रॉक. वर्ड्स कैन प्रोवोक अ स्माइल्स एंड एलिसिट जॉय. मतलब वर्ड जो है वो किसी की स्माइल को प्रोवोक भी कर सकते हैं, जॉय भी दे सकते हैं, खुशी भी दे सकते हैं. दे आर लाइक अ ग्लो वॉर्म्स, मोमेंटरीली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस एंड एक्ट एज अ लाइफ सेविंग ड्राफ्ट्स. देखो सराउंडिंग यहाँ पे बोला है एज डिस्पेलिंग, मतलब जो सराउंडिंग डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसको मिटाकर वो क्या करेंगे, एक्ट लाइक अ लाइफ सेविंग ड्राफ्ट्स. एमिड द tumultuous ocean waves, words grant us the ability to explore the universe and to see a world in the grain of sand. मतलब यहाँ पे ये बोला है कि वर्ड जो है ना इस पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड वी कैन सी दैट होल वर्ल्ड इन दैट स्मॉल पार्ट एंड वी कैन एग्जामाइन इट. एल्स विलियम ब्लेक नोटेड, they impart a semantic existence to lifeless and bestowed aesthetic form upon the formless. Scriptures say the word is a world. I say the world within the word is the abode of faith. Now, moving to the actually interesting paragraph is now the question first. An engagement with the words is the most captivating, enchanting, and sometimes daunting encounter with the world. Which of the following conclusions can be drawn from the above statement? हमें इस statement से conclusion लेना है guys. Don't misconcept it with the passage. हमें passage से conclusion नहीं लेना है, specifically mention किया है above statement, तो यहाँ statement में से ही conclusion निकालना है. So answer should be restricted to the statement only, generalized to the statement only, not the paragraph. Option A says words can be used to manipulate others. This is wrong. Option B says the power of a words should be used carefully. This is also wrong. Words can capture an atrocities of a world. This is wrong. जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे ना, दैट शुड बी अ जनरल सेंस. वर्ड्स कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ अ वर्ल्ड इन ऑल इट्स डिफरेंट कलर्स. यस, दिस इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स द ऑथर्स आइडिया ऑफ वर्ड्स बीइंग लाइक अ ग्लो वॉर्म्स मोमेंटरीली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस. मतलब सराउंडिंग डार्कनेस को डिस्पेलिंग करने की बात हुई थी ग्लो वॉर्म्स बनकर वर्ड्स को, तो ये जो चीज है वो क्या डिस्क्राइब करती है, मतलब ऑथर की जो आइडिया है वर्ड्स बीइंग, तो इसका क्या मतलब क्या स्ट्रेंथन करेगी, इसमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो ये जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रेंथन कर देगी. देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन्स दी, मतलब ये ऑप्शन जो है वो इस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए. ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो वर्ल्ड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी. स्ट्रेंथन करने का दूसरा मतलब ये भी होता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिमिलर स्टेटमेंट, मतलब ये सिमिलर स्टेटमेंट होना चाहिए, एज इन ट्रू होना चाहिए, सिमिलर टू द अबाउ स्टेटमेंट होना चाहिए. वर्ल्ड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, वर्ड्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी. वर्ड्स एलिमिनेट द माइंड ऑफ अदर रीडर. एलिमिनेट द माइंड ऑफ रीडर मतलब रीडर को कुछ भी सोचने में मजबूर कर देता है, दैट इज द एलिमिनेशन समथिंग. सो ऑप्शन बी वुड गेट रॉन्ग. वर्ड्स हेल्प इन एस्केपिंग अ रियलिटी. एस्केपिंग अ रियलिटी मतलब गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाना, रियलिटी से बाहर निकल कर आप चले जाओगे तो दैट विल बी द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट थिंग. सो ये तो नेगेटिव हो गया. देन ऑप्शन डी सेज वर्ड्स कास्ट डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द रीडर. वर्ड्स कास्ट डार्कनेस इन द माइंड ऑफ द रीडर. कास्ट डार्कनेस करना मतलब क्या, तो डार्कनेस क्रिएट करना. हाउ इट वुड बी अ राइट आंसर, लाइक डार्कनेस किसी के माइंड में क्रिएट करोगे तो दैट वुड बी नॉट राइट सेंस, नो, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया. सो ऑप्शन ए वुड बी योर राइट आंसर. 15. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड विद इन वर्ड. मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअली ये पूछ रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज वर्ल्ड विद इन अ वर्ड. देखो इट रेफर्स टू पावर ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट अ इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फेथ. मतलब ये बता रहा है कि ये जो है ना ये पावर ऑफ द लैंग्वेज है टू क्रिएट व्हाट, इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फेथ. नाउ इट सिग्निफाइज द ऑथर्स लव फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी. ग्लोबल कम्युनिटी की बात हो रही है, लैंग्वेज की नहीं, तो रॉन्ग हो गया. इट रिप्रेजेंट्स द मिस्ट्रीज हिडन इन द लैंग्वेज. मिस्ट्री की बात हो रही है, दिस इज नॉट अबाउट द जनरल सेंस, रॉन्ग.
Option D says it describes the author's mission to explore different culture. Explore a different culture. It is not the main theme of the passage also. So option D would get cancelled. Option A would be your right answer. Next question. What is the central theme of the passage? Passage का central theme क्या था? It is only talking about the language is better and it is talking about the क्या वो उनके लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है, बेसिकली वो वर्ड्स क्या काम करते हैं, दैट इज व्हाट द passage is telling about, right? So now here, first of all, option A says the history of the human language. History of the human language, no, language के बारे में जनरली बात नहीं हो रही थी, about words. So option A would get cancelled. Option B says the impact of the words on the human existence would be the right answer. Then C says the importance of storytelling. Storytelling के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा था. Option C get cancelled. The mystery of the human cognition. Human cognition is the another point. ये तो डिस्कस ही नहीं हुआ है. So option B would be your right answer. Next. According to the passage, what does the word symbolize? Word जो है वो symbolize कैसे किया जाता है? Then an inanimate object. An inanimate object था क्या वो? नहीं, तो वो animate भी नहीं था. Basically inanimate भी नहीं है, animate भी नहीं है. Tangible entity. It is not a tangible entity. It is basically what? Simple. It's a intangible concept. तो ये दोनों भी तीनों भी eliminate हो जाएंगे. Simple. Now next question. How does a passage describes the words ability to affect the emotions? मतलब passage जो है वो words की ability को कैसे describe करता है to affect the emotions. See, option A says words can only evoke positive emotion. Only evoke बोला है गलत. Words can absorb the emotions and become emotions themselves. मतलब absorb कर लेंगे emotions को और खुद ही emotions बन जाएंगे. Absorb कर लेंगे emotions को और खुद emotions बन जाएंगे. Now, words have a no impact on emotions. Wrong. No impact on emotions. Statement देता है गलत. Words can be devoid of emotions. Can be devoid of emotions? No, this is wrong. Option B would be your correct answer. Now, passage 4. Imagine you have just been appointed as a consultant for a manufacturing company that is experiencing a decline in its production efficiency. मतलब हम लोग इस ऐसे कंपनी के मैनेजर है जहां पर कंसल्टेंट है, सॉरी मैनेजर नहीं, हमें कंसल्टेंट अपॉइंट किया जा रहा है जहां पर जो प्रोडक्शन है उसकी इफिशिएंसी बहुत ही खराब है, डिक्लाइंड हो चुकी है. द कंपनी प्रोड्यूसेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. द मैनेजमेंट इज अ कंसर्न अबाउट ओवरऑल आउटपुट. मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल आउटपुट के रिगार्डिंग कंसर्न है. योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉजेज ऑफ दिस डिक्लाइन एंड रिकमेंडेड अ सोल्यूशन. अपना टास्क क्या है कि एक अच्छा सोल्यूशन निकालो और इसको डिक्लाइन का रीजन फाइंड आउट करो बेसिकली. देन एज यू बिगिन योर इन्वेस्टिगेशन यू गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग. आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया एंड यू फाइंड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. देखो, द कंपनी रिसेंटली इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम. अभी यहाँ पर थोड़ा सा बिजनेस के तरीके से सोचना पड़ेगा. अ न्यू प्रोडक्शन सिस्टम दैट इज मोर ऑटोमेटेड बट रिक्वायर्स द हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर. यहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर चाहिए. दैट मीन्स यू नीड एम्प्लॉइज, मोर स्किल्ड एम्प्लॉइज की आपको जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी. इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. अगेन थोड़ा सा पहले ही प्री थिंक कर लेते थोड़ी बहुत चीजें. द वर्कफोर्स हैज रिपोर्टेड अ लैक ऑफ मोटिवेशन and job satisfaction. Workforce has reported what? Lack of motivation and job satisfaction which are led to increase absenteeism. मतलब यहाँ पर लोगों की सैलरी लो है, वर्किंग एनवायरनमेंट डाउन है. यहाँ पर सैलरी इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम प्रमोशन देना, उनको अप्रेजल देना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप एम्प्लॉयज को एक ऐसा एनवायरनमेंट दोगे जो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, उनकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगा, उनकी जो फ्रीडम ऑफ माइंड है, वो फ्रीडम ऑफ वर्किंग है, वर्किंग एनवायरनमेंट को अगर डिस्टर्ब करेगा तो वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे. सो यू शुड गिव देम अ फ्रीडम. लाइक उनके बातों को ऊपर आने के लिए, उनकी काम को अच्छा होने के लिए उनको फ्रीडम देना इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो काम करेंगे. देन उनके प्रमोशन एक्टिविटीज को ध्यान देना, उनको प्रमोशन देना, टाइम टू टाइम उनको प्रमोशन देना, उनकी वर्किंग के लिए उनको अप्रिशिएट करना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देम. तो तभी तो एब्सेंटिज्म कम होगी. इन शॉर्ट, नाउ there have been several breakdowns in the new machinery leading to production delays and quality issues. मतलब यहाँ पे मशीनरी का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं किया जाता. The company competitors have adopted a similar automation technologies and are experiencing increased productivity. अब जो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है इन्होंने क्या किया है, सिमिलर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी ली है. मतलब जो अभी इन्होंने टेक्नोलॉजी ली वो टेक्नोलॉजी उनके पास भी है और वहां पर जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है, इफिशिएंसी बढ़ चुकी है. कस्टमर कंप्लेंट्स अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी हैव इंक्रीज्ड इन द रिसेंट मंथ. मतलब यहाँ पे क्वालिटी डाउन है तो क्वालिटी चेक भी कम है, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक कम हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. हाउ माइट the increased absenteeism affect प्रोडक्शन इफिशिएंसी. मतलब प्रोडक्शन इफिशिएंसी जो एब्सेंटिज्म है ये प्रोडक्शन इफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करेगा. ऑप्शन ए सेज इट माइट लीड टू इंक्रीज द क्वालिटी इश्यूज. इट माइट लीड टू इंक्रीज द क्वालिटी इश्यूज. ओके, सो दिस कुड बी योर राइट आंसर. आगे देखते हैं.
इट माइट रिजल्ट इन लॉन्गर मशीनरी ब्रेकडाउन. देखो मशीनरी ब्रेकडाउन होना दैट इज अबाउट मेंटेनेंस, इट इज नॉट अबाउट की एब्सेंटिज्म, राइट. इट कुड लीड टू डिलेज इन प्रोडक्शन. हाँ, इट कुड लीड टू डिलेज इन प्रोडक्शन बिकॉज अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है दैट मीन्स प्रोडक्शन नहीं होगा. ऊपर जो लिखा है क्वालिटी इश्यूज, देखो एम्प्लॉयज कम होने से क्वालिटी कम नहीं होती, वर्किंग एनवायरनमेंट कम होने से या फिर वर्किंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कम होगी तो क्वालिटी कम होगी. अगर वर्किंग सही नहीं है तो क्वालिटी कम होगी. सो ऑप्शन ए वुड गेट एलिमिनेट, बी वुड गेट एलिमिनेट. ऑप्शन सी एंड डी. नाउ इट हैज नो इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी. ऐसा नहीं होगा बिकॉज एब्सेंटिज्म है तो प्रोडक्शन कम होगा, दैट मीन्स इफिशिएंसी भी कम होगी. सो ऑप्शन डी वुड गेट कैंसल एंड ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर. नेक्स्ट, What would be the possible solution to the address the decline in production efficiency? Possible solution क्या होगा? देखो यहाँ पे बोला है ऑप्शन ए says hire more specialized operators for a new system. This would be the one of the solution. आगे देखते हैं. Implement a motivation and job satisfaction program for the workforce. Okay. Then यहाँ पे बोला है upgrade the machinery to reduce the breakdown. देखो ये जो है ना परचेज न्यू मशीनरी टू रिप्लेस द ऑटोमेटेड सिस्टम. नाउ यू वुड थिंक दैट कि चारों के चारों सही सॉल्यूशन है, बट चारों के चारों सही सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज यहां पे बात की जा रही है डिक्लाइन इन प्रोडक्शन इफिशिएंसी. देखो अगर आप सिर्फ स्पेशलाइज्ड सिस्टम लाओगे या फिर उसको चलाने वाले ऑपरेटर लाओगे, वो काम करेंगे जरूर लेकिन तब तक काम करेंगे जब तक आप उनको सैलरी दे रहे हो. एक बार उनका सेटिस्फैक्शन खत्म हो गया, काम से उनका मन हट गया, वो काम करना बंद कर देंगे. देन अगेन वो स्पेशलाइज हो भी तो वो छोड़ के चले जाएंगे, उनको कोई अच्छा ऑफर देगा वो चले जाएंगे. तो यहाँ पे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ ऑप्शन सी सेज अपग्रेड द मशीनरी टू रिड्यूस द ब्रेकडाउन. मशीनरी को अपग्रेड कर लिया, हायर भी कर लिए अच्छे लोग, लेकिन उनको आप कुछ अच्छा एनवायरमेंट दे ही नहीं रहे हो, वो रुकने वाले थोड़ी, वो चले जाएंगे. सिंपल है. देन ऑप्शन डी सेज परचेज अ न्यू मशीनरी टू रिप्लेस द ऑटोमेटेड सिस्टम. कितनी भी अच्छी सिस्टम लगा लो, कितना भी अच्छा ऑटोमेटेड सिस्टम लगा लो, अगर आपके एम्प्लॉयज आपके पास नहीं रहे तो आपकी सिस्टम कैसे चलाएंगे? अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो आपका बिजनेस एंड प्रोडक्शन कैसे होगा? सिंपल है. तो ऑप्शन डी वुड गेट ऑल्सो कैंसिल. इंपॉर्टेंट इज आपके पास एम्प्लॉयज होने चाहिए, आपके पास वर्कफोर्स होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए. अगर वही नहीं रही तो आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम एंड आपकी मशीनरी, आपका सब कुछ काम नहीं करने वाला. आपकी टीम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स. सो सिंपल है, आपको क्या करना होगा? इंप्लीमेंट दी मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम फॉर दी वर्कफोर्स. उनको सैलरी दो, उनको प्रमोशनल एक्टिविटीज दो, उनको स्कोप दो, उनके काम के लिए उनको फ्रीडम दो. ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो बढ़ते जाएगा. देन based on information provided, what is the potential consequences of the increased customer complaints about the product quality? अब क्या बोला है, इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की थी उसमें से क्या बोला है कि what is the potential consequences of increased customer complaint? इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जो कंप्लेंट इंक्रीज हुई ना उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये पूछा गया. नाउ ऑप्शन ए सेट says it indicates that companies competitors are also experiencing quality issues. मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि it indicates that companies competitors are also experiencing the quality issue. देखो कस्टमर्स ने आपके पास क्वालिटी का कंप्लेंट किया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉम्पिटिटर के पास भी क्वालिटी अफेक्टेड है. दैट डजंट मीन, राइट. सो ऑप्शन ए वुड बी रॉन्ग, एलिमिनेट. देन ऑप्शन बी सेज इट सजेस्ट दैट द कंपनीज प्रोडक्ट आर मीटिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. अगर एक्सपेक्टेशन मिट करते तो ये कहाँ होता? ये होता ही नहीं. तो ऑप्शन बी वुड गेट एलिमिनेट. ऑप्शन सी सेज इट मे लीड टू अ लॉस ऑफ कस्टमर्स एंड रेपुटेशन डैमेज. यस, गुडविल डैमेज होगा और उसी के साथ कस्टमर भी आपके चले जाएंगे. सिंपल है. तो ऑप्शन सी वुड बी राइट आंसर. ऑप्शन डी चेक कर लो. इट शोज दैट कंपनीज ऑटोमेटेड सिस्टम इज परफॉर्मिंग वेल. अगर परफॉर्मिंग वेल होती तो कहीं पर भी क्वालिटी इश्यूज नहीं आते, और क्वालिटी इश्यूज नहीं आती तो आपको कंप्लेंट्स नहीं आती. सो ऑप्शन डी वुड गेट एलिमिनेट एंड ऑप्शन सी वुड बी योर राइट आंसर. Now, moving ahead. Next question, based on the information provided, which of the following is the potential root cause of the decline in the production efficiency? आपको जो information मिली after the investigation, इसमें से आपको क्या पता चला कि what is the potential root cause? root cause क्या है? Now, option A says the introduction of a new production system. new production system किया, इसके वजह से आपकी जो production efficiency है वो decline हुई क्या? ये पूछ रहा है. lack of motivation and job satisfaction among the workforce, increased absenteeism. देखो अब ये जो है ना ये cause and effect है. ये कॉज है, ये कॉज्ड है, ये इफेक्ट्स है, ये इफेक्ट्स है. ये तो मेजर हो गया ना, मेजर हो गया तो हमें तो कॉज चाहिए, हमें तो कॉज चाहिए था. मेजर कैसे आंसर हो सकता है? कॉज कैसे, इफेक्ट कैसे आंसर होगा? ब्रेकडाउन्स इन मशीनरी, दिस इज आल्सो कॉज. कॉज इज व्हाट? लैक ऑफ मोटिवेशन एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द वर्कफोर्स. सिंपल.
Now, what makes the introduction of the new production system a potential contributing factor to decline in the efficiency? मतलब ऐसा क्या है कि जिसके वजह से न्यू प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो पोटेंशियल बन जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्टर बन जाएगा टू डिक्लाइन व्हाट? एफिशिएंसी। ऐसा क्या है? The system is a highly automated. It requires a specialized operators. The machinery is a prone to breakdowns and the competitors have adopted the similar technology. देखो कॉम्पिटिटर ने सिमिलर टेक्नोलॉजी ली या ना ली कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इफिशियंसी कम नहीं होती, इससे आपके जो कस्टमर्स है वो कम हो जाएंगे लेकिन आपकी प्रोडक्शन इफिशियंसी कम नहीं होगी। तो बेसिकली ऑप्शन डी वुड गेट एलिमिनेट। मशीनरीज इज अ प्रोन टू गेट ब्रेकडाउन, न्यू मशीनरी ब्रेकडाउन होने का सवाल ही नहीं आता, मेंटेनेंस करो तो ब्रेकडाउन नहीं होगी, सिंपल। देन इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज ऑपरेटर, यस इट रिक्वायर्स अ स्पेशलाइज ऑपरेटर। अगर वो नहीं होंगे और अगर ओल्ड मेथोडोलॉजी वाले अगर एम्प्लॉइज को आप वहां पे खड़े करोगे तो मशीन यूज ही नहीं कर पाएंगे, अगर वो मशीन यूज नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी वेस्ट, देयर विल बी मशीन ब्रेकडाउन, तो वहां पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड ऑप्शन ए सेज द सिस्टम इज हाईली ऑटोमेटेड, नो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the critical difference between the company situation and that's of its competitor के बीच में और कंपनी की जो अभी सिचुएशन है इसके बीच में डिफरेंस क्या है, एंड that is also critical. Now option A says both the company and its competitor have introduced a new production system. दोनों ने भी प्रोडक्शन सिस्टम, ये डिफरेंस कैसे हो सकता है, ये तो सिमिलैरिटी हो गई, राइट? नाउ द कॉम्पिटिटर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट्स, कॉम्पिटिटर को इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट मिली नहीं, कॉम्पिटिटर्स तो अच्छा खासा सेल कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। द कंपनीज वर्कफोर्स लैक्स मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, यस दिस इज ट्रू बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिटर के इसमें जो चल रहा है दैट इज अच्छा एफिशिएंसी है, कस्टमर अच्छी बात कर रहे हैं उनके बारे में, अच्छा अच्छा प्रोडक्शन सेल हो रहा है, तो ठीक है ना, उनके पास तो वर्कफोर्स अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, वर्कफोर्स हैप्पी नहीं है, दैट वी ऑलरेडी फाउंड इट आउट, राइट? Option D says company's machinery is prone to break down. No, this is not the particular answer. So option C would be your right answer.